वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिकाचरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनं मनोहरम् हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलं करुणस्तेव नस्तेव गतिरन्यथा। सर्वाग्रे परमाराध्य श्री गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट भक्ति हृदय वनदेव गोस्वामी महाराज तार चरण कमल वंदना करे तार आशीर्वाद प्रार्थना करी। तत्परे दूर दूरान्ते असंख्य लक्ष लक्ष श्रोता এখন এই পেজকে দেখছেন। আমরা যে পেজ খুলে দিয়েছি লক্ষ লক্ষ শ্রোতা এই পেজের মাধ্যমে অমর কথা শুনে চলেছেন। সবাইকে আমাদের সমস্ত বিদ্বান সমাজ ভক্তবৃন্দ, সমস্ত বৈষ্ণব মণ্ডলী, স্নেহময়ী করুণাময়ী বাৎসল্যময়ী মাতৃশক্তি সবাইকে জানাই আমার হার্দিক অভিবাদন। আজ একাদশী তিথি, কিন্তু গোস্বামী মতে পার্শ্বয়িকা একাদশী আগামীকাল। যারা গোস্বামী মতে ব্রত করেন তারা কালকে একাদশী ব্রত পালন করবেন পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে। ব্রতের মধ্যে বরাহ পুরাণ আদি শাস্ত্রে একাদশী ব্রতকে ব্রতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত বলা হয়েছে। যে ব্রত করলে মানবের চিত্ত মন পবিত্র হয়, শরীর রোগমুক্ত হয়, মানসিক প্রশান্তি আসে, ঈশ্বরের চরণে ভক্তি বাড়ে, হৃদয় নির্মল হয়। সেই জন্য মনে রাখবেন যে একাদশী ব্রত আমরা যে যত শ্রদ্ধা ভক্তি ভালোবাসা দিয়ে করব আমাদের জীবন তত কল্যাণময় হয়ে উঠবে। একাদশী এমনিতেই আপনার মেডিকেল সায়েন্স বলে যে সপ্তাহে একদিন উপবাস করা, ফাস্টিং করা, এটা একান্ত দরকার। আর এটা তো আমরা বলছি 15 দিনে একদিন উপবাস করো। একাদশীতে একদম কম খাবেন, যত কম খাওয়া যায়, যতটা কম। সকালবেলা কিছু খেতে ইচ্ছে হলে একটুখানি কিছু খেলেন, বাদাম খেলেন একটু, আবার দুপুরবেলা একটু সাবু কিংবা অন্য কিছু যাই ফল টল দুধ টুধ একটু খেলেন, অল্প করে খাবেন। সারাদিন খিদে থাকবে আর ভেতরে ভগবানের নাম জপ করতে থাকবেন। এটা একাদশীর সব থেকে বড় দরকার। মন্ত্রটা রোটেশনে ঘুরতে থাকে, জানেন তো। আমার এমনই হ্যাবিট হয়ে গেছে, রোটেশনে আমাদের বুড়ি বলে, আপনি সবসময় প্রাণায়াম করতে থাকেন কেন, ফসফস করতে থাকেন কেন? আরে কে অভ্যেস হয়ে গেছে, হবে না। সবসময় মন্ত্র জপ প্রাণায়াম করি, ধ্যান করি। তো আপনাদেরও প্রতিনিয়ত জীবনটাকে অধ্যাত্ম সাধনার জন্য মন্ত্র জপ ধ্যান উপাসনা সর্বতোভাবে করার চেষ্টা করবেন। মানব জীবন তো ফুট করে কখন পটল তুলবেন তো কেউ জানেন আপনি? হ্যাঁ, কহিন জানাতি মৃত্যুকাল ভবিষ্যতি। কখন যে মৃত্যু আপনাকে টেনে নিয়ে যাবে আপনি জানেন? ও বড় লিডার হোক আর বড় ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হোক, টাটা গ্রুপের যে চেয়ারম্যান ছিলেন কালকের হঠাৎ করে তার অ্যাক্সিডেন্টে মৃত্যু, কাল না পরশু দিন বোধহয় অ্যাক্সিডেন্টে মরে গেলেন। তার যে এগুলো মানে বেলুনগুলো বেরিয়ে এসে প্রোটেক্ট করে সেইগুলো বেরোয়নি। কোম্পানিকে বলছে কি হলো তোমার, এটা কাজ করলো না কেন? যাই হোক, তাহলে মৃত্যু চিন্তা করুন। বড় ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হোক, অ্যাক্সিডেন্টেও মরতে পারে, হার্ট অ্যাটাকেও মরতে পারে, চোরের দ্বারাও মরতে পারে, গুন্ডার দ্বারাও মরতে পারে, বম ফেটে মরতে পারে, গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মৃত্যুর কোনো গ্যারান্টি আছে? গ্যারান্টি দিতে পারবেন কেউ? কহিন জানাতি মৃত্যুকাল ভবিষ্যতি। কখন মৃত্যু আসবে কেউ জানে। সেই জন্য মানবের কর্তব্য কি? জীবনটাকে কি করে ঈশ্বর সাধনায় সমর্পণ করা যায়, কি করে আমরা সুন্দর হরিভজন করতে পারি, কি করে আমার হৃদয়ের হিংসা বিদ্বেষ কপটতা মিথ্যাচার জটিলতা চলে যায়,
আমি কত ভগবানের উপযুক্ত হয়ে যেতে পারি। ভগবান আমাকে উপযুক্ত মনে করলে গ্রহণ করবেন তো, ঠিক না? যেমন কত সুন্দরী মেয়েদের যারা ধরুন সিনেমা করে, তাদের দেখে সবাই মনে করে এরম মেয়ে একটা পেলিয়ে লাফালাফি শুরু করে দেয়, বলে এরম একটা মেয়ে বিয়ে করতাম। তা পাওয়া যাবে? যোগ্যতা না হলে ওই মেয়েটা বিয়ে করবে তোমাকে? বিয়ে তা করলে চাইলেই পাওয়া যায়। কিংবা কোনো একটা ছেলেকে, সালমান খানকে এখনো 55 বছর বয়স হয়ে গেছে, এখনো কত মেয়ে তার পেছনে দৌড়াচ্ছে। তা কি সালমান খানকে বিয়ে করতে পাওয়া যাবে? হাজার হাজার মেয়ে তাকে ওই রকম মনে করে। তার একটা জীবনের স্টাইল আছে, তাকে একটা লিমিটেশনের মধ্যে থাকতে হয়, তার ঘর বাড়িতে সর্বত্রভাবে একটা বিধি বিধানের মধ্যে চলতে হয়। তো মানুষ তো, পশু তো না, পশুগুলোর কোনো শৃঙ্খলা নেই, কিন্তু মানবের তো শৃঙ্খলা থাকবে। না হলে মানব জীবনের বৈশিষ্ট্য কি? প্রতিটা, এই জন্য মানুষ যা খুশি তাই করলো, সে নানান রকম দুষ্কর্মের পরিণাম ভোগ করছে। মামলা মোকদ্দমা, জটিলতা, লজ্জা শরম সব হারিয়ে পাপাচারে যুক্ত জীবন যাপন করছে। যারা করছে তারা করুক, কিন্তু আপনাকে সাধনা করতে হবে। যারা কেশবানন্দ মহারাজকে বন মহারাজকে ভালোবাসেন, তাদের মনে রাখতে হবে যে हम लोगों को प्रत्यह मेडिटेशन का अभ्यास करना जरूरी है। प्रतिदिन मंत्र का जप करो और तुम्हारा जो स्वाधिष्ठान चक्र है वहां पर रोटेशन में जितना जप करते रहोगे उतना दैवी शक्ति तुमको हेल्प करता रहेगा। दैवी शक्ति का हेल्प तुमको निरंतर मिलता रहेगा। वो तुमको कुछ न कुछ परिस्थितियों से निकलने का, उबरने का, उसको संभालने का सारा कुछ रास्ता तैयार करेगा। इसलिए दैवी शक्ति का मंत्र जप करते रहने से, ध्यान करने से जीवन सुंदर हो जाता है। तो যেটা বলছিলাম, মহাপ্রভু চৈতন্যদেব জগতে এলেন এই ভক্তিকে দেওয়ার জন্য। অনর্পিত চরিং চিরা করুণাবতীর্ণ কালৌ। দেখুন, মহাপ্রভুকে বলছেন যে করুণার ঘনমূর্তি গৌর সুন্দর জগতে অবতীর্ণ হলেন। কি, কেন অবতীর্ণ হলেন? যাহা অনর্পিত, মানে যাহা অর্পণ করা হয় নাই, বহুকাল নাহি করি প্রেম ভক্তি দান, ভক্তি বিনা जगतेर नहीं अधिष्ठान। अनेक कालों से संसार को भक्ति नहीं दिया गया। भक्ति माने प्यार, भक्ति माने प्रेम, भक्ति माने ईश्वर के प्रति हृदय का समर्पण भाव, जो हम लोगों को नहीं दिया गया। इसलिए हम वंचित हो गए। हम संसार में दुखों के पहाड़ के नीचे दब रहे हैं, त्रिताप यंत्रणा भोग रहे हैं, आध्यात्मिक आदि, भौतिक आदि, दैविक आदि कष्ट हमको झेलना पड़ रहा है। कोई चाहता है कि हमको इस प्रकार का दुख हो? कभी बीमारी हो, कभी ये जैसे पाकिस्तान में बहुत बड़ा जल प्रलय हो रहा है, बहुत से लोग, हजारों लोग मर गए। तो इस तरह से जो प्रॉब्लम हम लोगों के सामने आता है, इसको हमें सोचना चाहिए कि कोई भी दुख हमारे सामने जो आता है, इसे कहते हैं दैविक। दैविक दुख, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आदि दैविक माने दैव विपर्यय। इतना पानी बरसा, इतना मेघ टूटे, इतना पहाड़ टूटा, इतने गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, इतने रास्ता बंद हो गए, इतने सारे लोग दब गए, ये सब, या पानी नाव पलट गया, लोग डूब के मरे। 55 यात्री थे, 45 तीर में आ गए और 10 लोग पानी में बह गए। पता नहीं कहाँ बॉडी मिला या नहीं, अभी तक खबर में नहीं दिखाया। तो ये जो हमारा प्रॉब्लम होता है, इसे हम 3 प्रकार से बांटते हैं। एक तो आध्यात्मिक दुख, जैसे कोई बीमार हो जाए, बहुत तकलीफ झेले, कोई डिप्रेशन में भुगता रहे। डिप्रेशन, काल सर्प दोष जीवन में जब आता है तो मनुष्य मेंटल डिप्रेशन में भुगने लगता है। उसमें आत्महत्या की प्रवृत्ति होती है, जीवन के प्रति एक निराशा पैदा होती है, जीवन उसके सामने जीना एक
परेशानी लगता है कि क्यों जिए, क्या क्या करे जी के, ये बेकार हो गया जीवन, क्योंकि उसमें प्रेम नहीं है। समझ लीजिए बात को। तो जीवन में प्रेम क्यों नहीं है? बोले काल सर्प दोष। काल राहु को कहा जाता है और सर्प केतु को माना जाता है। उनके बीच में शनि भी जुड़ जाता है। यदि शनि चंद्रमा एक साथ हो जाए तो 20 योग बन जाता है। आप लोग समझते नहीं है। केशवानंद महाराज जो विचार करते हैं उसको जीवन में समझो। ये तुम्हारा जीवन का कल्याण का मार्ग है। जो 20 योग से तुम जूझ रहे हो, जो कालसर्प दोष का तुम्हारा जीवन को बिल्कुल नरक बना दिया। अभी अभी भक्त लोग आए थे, जब ये प्रोग्राम शुरू से पहले, कह रहा है मेरा लड़का इतना खराब हो गया, इतने कम उम्र में एकदम से बिगड़ गया। और वो आपने गोपाल को भी साथ में लेके चली आई, अपने माँ के साथ, दोनों माँ बेटी आई। बोले गोपाल को ले आया। बोले क्यों? बोले गोपाल को ले जाके भी दुकान में बेच देगा, चाहे जो मिले। शराब पीता है, शराब पीने के लिए गोपाल को बेच देगा, चाहे माँ को बेचना पड़े, चाहे दादी को बेचना पड़े, नानी को बेचना पड़े, बाप को बेचना पड़े, और घर का कोई भी सामान बेचना पड़े, बेच देगा। देखिए शराब पिएगा। और महाराज के पास आया भाग्य को जानने के लिए। बोले वहां जाके पैसा क्यों बर्बाद करते हो, खराब करते हो? वो पैसा मुझे दो, मैं शराब पीऊंगा, चिंता कर लीजिए। शराब पी के पैसा का सदुपयोग करेगा और महाराज जी का आदेश लेके जीवन को चलने में जो अंधेरा छटेगा उसको कहता है बर्बादी। वो बर्बाद क्यों करते हो? तो इसलिए ये संसार में हम लोग जो दुखी हैं, कई कारणों से दुखी होते हैं। बात को समझ लीजिए, कई कारणों से हम लोग दुखी हैं। पहला कारण यह है कि कालसर्प दोष जीवन का सबसे भयंकर कारण है। कालसर्प दोष, कोई आ जाए तो अंदर ले आओ। कालसर्प दोष जीवन का सबसे भयंकर कारण है, समझ लीजिए। 20 योग, ये भी भयंकर कारण है। मांगलिक दोष, अगर ये तीनों दोष किसी के जन्म पत्री में आ जाए, मांगलिक दोष, 20 योग और कालसर्प दोष, तो आदमी नार्व के बीमारी से भुगता है। अर्थात वो डिप्रेशन में चला जाता है, उसका नार्व का बीमारी होता है, जीवन उसका डिस्टर्ब होने लगता है। इसलिए ये जीवन हमारे लिए विषमय हो जाता है जब हम कालसर्प दोष को या 20 योग को, मंगल दोष को नहीं जानते, नहीं समझते। इसलिए आप लोगों को यही कहना है कि जीवन को ठीक से समझिए। ये जीवन भगवान का दिया हुआ एक महावरदान है। जब तक जीवन में भगवान के प्रति श्रद्धा, भक्ति नहीं आएगी, तब तक हमारा जीवन कल्याणमय नहीं हो सकता। इसलिए महाप्रभु चैतन्य देव भक्त अवतार के रूप में, भगवान भक्त रूप लेकर के जगत में आए। आके बोला, वैष्णव कवि कहते हैं, अनर्पित चरिंग, चिरात। चिरात माने अनेक कालों से जो नहीं दिया गया। चिरात, एक 2 साल, 1-200 साल, 1-2000 साल नहीं, बहुत कालों से, अनेक कालों से, युग युगांतर से जो प्रेम नहीं दिया गया। अनर्पित चरिंग चिरात करुणयावतीर्ण कलु। तो इसलिए भगवान एक करुणा का मूर्ति बनकर संसार में आए, वो है चैतन्य महाप्रभु। समर्पयतुम उन्नत उज्ज्वल रसम, जगत को देना चाहते हैं उन्नत उज्ज्वल रस, जो रस झेवायम लब्धानंदिर भवति। बात को ध्यान में रखिए, रस झेवायम लब्धानंदिर भवति। रस, रस माने आनंद, रस, रस वही सह। भगवान क्या है, भक्ति क्या है, अमृत क्या है, आत्मा क्या है, चाहते क्या है? बोले हम रस ही चाहते। रस माने आनंद, जो हम आनंद चाहते हैं। हम किसी भी स्थिति में दुखी होना नहीं चाहते, ना दुख झेलना चाहते हैं। लेकिन रस वैशः, रस स्वरूप भगवान को जब तक हम साधना नहीं करेंगे, जब उनके रसों को हम अनुभव नहीं करेंगे, और रस स्वरूप भगवान से जब तक हमारा प्रेम का संपर्क नहीं होगा, जो भगवान को प्यार नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, तो हमारा जीवन में जो रस आना था वो नहीं आएगा, दुख आएगा। कुछ ना कुछ दुख होने लगेगा। बेटे का दुख, परिवार का दुख, पति का दुख, पैसे का दुख, समस्या ही समस्या है। संसार में हजारों लोग हमारे पास आते हैं, लाखों लोग आते हैं।
अभी कुछ एक पार्टी चला गया, अभी कुछ बच्चे लोग आए हैं, आके बैठ गए। तो ये सारे लोग क्यों आते हैं कि महाराज जी के बातों को सुनकर चलेंगे तो हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा, कल्याणमय हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा, और होगा जरूर। केशवानंद महाराज जब बोलता है कि मेरे बात को सुन करके चलो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो जाएगा, तो उसी से भरोसा करके मंगलमय की रास्ते में अंधेरा को मिटाने के लिए प्रकाश की तमसो मा ज्योतिर्गमय, तुम अंधेरे के मार्ग पर मत चलो, प्रकाश की ओर चलो। ये प्रकाश नित्य है। वो जो आत्मा के अंदर तुम देखोगे, शांत होकर मेडिटेशन करोगे, अंदर के आनंद को जब अपने साधना के द्वारा बाहर के तरफ ले आओगे, सारे आंखों में, मुखों में, शरीरों में, हृदय में, वचनों में, व्यवहार में, सारे चेतना में, जब वो आनंदमय आत्मा का जो दिव्य आनंद है, आनंद स्वरूप भगवान का आनंद जब तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा, तो तुम्हारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। इसलिए समर्पय तुम उन्नत उज्ज्वल रसम, जो रस भगवान ने दिया वो रस उन्नत एवं उज्ज्वल, जिसमें कोई अंधेरा नहीं और जिससे कोई बड़ा नहीं, वो आनंद से कोई बड़ा आनंद दुनिया में है ही नहीं। ईश्वर प्रेम से उत्तम आनंद इस संसार में कुछ भी नहीं है। इसलिए ईश्वर से बड़ा आनंद संसार में किसी को नहीं मिल सकता, ये आपको निश्चित रूप से याद रखना चाहिए। इसलिए ईश्वर प्रेम से व ईश्वर भक्ति से श्रेष्ठ आनंद संसार में नहीं है। तुम कितना भी ढूंढते रहो, कितना भी संसार में उसका जुगाड़ बनाते रहो कि इससे हमको सुख होगा, लेकिन होगा नहीं। होगा तभी जब तुम अपने हृदय को सुंदर बनाओगे, मेडिटेशन रोज करोगे, मंत्र का जप का अभ्यास करोगे, जब योग के द्वारा चेतना को सुंदर करोगे। महाप्रभु तो यही कहा, उन्नत उज्ज्वल रसम। यही उन्नत उज्ज्वल रस तुम्हारे जीवन में तभी आएगा जब उन्नत और उज्जवल आनंद, रस माने आनंद, तो उन्नत उज्जवल आनंद तुम्हारे जीवन में तभी आएगा जब तुम ठीक प्रकार से ईश्वर का साधना करोगे, ठीक प्रकार से ईश्वर से प्यार करोगे, गुरु से दीक्षा लेकर गुरु के उपदेश को मानोगे। गुरु का उपदेश मानकर जीवन में चलना जरूरी है। गुरु तुम्हारे जीवन के अंधेरे को मिटाने के लिए सारे रास्ता निकाल के बता देते हैं कि इस पर चलो। हाँ, सदगुरु पावे भेद बतावे, ज्ञान करे उपदेश, कैला का मैला छोड़े जब आग करे प्रवेश। कैला का मैला कितना भी धोते रहो, कैला धो धो के घिस घिस के खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका मैला नहीं जाएगा। कब जाएगा? बोले कैला का मैला तभी जाता है, बात को समझ लेना, जब आग करे प्रवेश। आग लगा दो तो कैला का मैला चला जाएगा और कैला वे सुंदर प्रकाश फैलेगा। हाँ, वो आग के रूप में बदल के वो सारा प्रकाश को फैलता है। तो इसी प्रकार गुरु के कृपा जब हमारे ऊपर होता है, गुरु कृपा होती है, तो उससे क्या होता है, हमारे दिल के अंदर जो वासना, कामना और हिंसा, विद्वेष, कपटता के मैल भरे हुए हैं, उसमें आग लग जाता है। क्योंकि ज्ञानाग्नि दहते सर्व कर्म कहा। ज्ञान की अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो अंदर के सारे ये मलिन कैला, जितने भी कैला हमारे अंदर जमा हुआ है, वो कैले को आग लगा देते हैं। तो कैले में आग लगने से क्या होता है, उसका सारा मलिनता जो है दूर हो जाता है, वो प्रकाश फैलने लगता है। उसी प्रकार हमारा जीवन, हम कितना भी कोशिश करें, जीवन सुंदर नहीं हो सकता जब तक हम ध्यान ना करें, जब तक हम ईश्वर प्रणिधान ना करें, जब तक हम मंत्र का साधना ना करें, जब तक हम प्रभु से संपर्क को ना जोड़े। इसलिए भगवान के साथ जुड़ जाओ। ये जीवन ईश्वर से जुड़ने के लिए है। उनके साथ संपर्क निरंतर, भगवान अंदर बैठे हुए हैं और तुम्हारा आत्मा भी अंदर है। तो आत्मा और परमात्मा के संपर्क को समझो, थोड़ा देखने की कोशिश करो कि मेरे अंदर जो आत्मा है, जिसके लिए मैं जी रहा हूँ, वो आत्मा कैसा है, कितनी सुंदर है, उसमें आनंद कैसा है। केशवानंद महाराज कहते हैं, आत्मा के आनंद को प्राप्त करने का कोशिश तो करो। गुरु के कहे अनुसार मंत्र जप करके आत्मानंद में डूबने का कोशिश तो करो। आज जब तक नहीं करोगे तो जीवन में वंचित हो जाओगे। इसलिए आत्मानंद, आत्मा का निर्मल आनंद पाने के लिए
जीव को निरंतर कोशिश करना पड़ेगा। इसलिए अनर्पित चरिंग चिरात करुणायावतीर्ण कलौ, करुणा करके कलौ कली युग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और लोगों को आनंद का वार्ता दे दिया, आनंद का संवाद पहुंचा दिया कि भाई तुम ऐसे आनंद पा सकते हो। समर्पय तुम उन्नत उज्ज्वल रसम, उन्नत और उज्जवल रस समर्पण करने के लिए, लोगों को देने के लिए कि भैया ये आनंद पा लो, ये तुम्हारा है, तुम पा सकते हो, तुम ईश्वर के अंश हो, अमृत का अंश हो, तुम अमृत का पुत्र हो, तो तुम्हें तो ये आनंद तुम्हारा अधिकार है। इस आनंद में अपने जीवन को जोड़ दो, ध्यान करना शुरू कर दो, मंत्र जप करना शुरू कर दो, गुरु के चरण में संपूर्ण भक्ति भाव से अपने को समर्पण करो, तुम्हारा जीवन धीरे धीरे सुंदर हो जाएगा। ये जीवन सारे कालिमाओं से मुक्त हो जाएगा, सारे आधेरा जीवन से चला जाएगा, जीवन मंगलमय हो जाएगा। इसलिए उन्नत उज्जवल रसम, ये ऐसा रस जिसमें कोई मलिनता नहीं, कोई कपटता नहीं। रस माने आनंद, ऐसा आनंद जो निर्मल आनंद। लेकिन राधा रानी के उस दिन के राधा आविर्भाव तत्व में मैंने कहा था कि संसार में भी आनंद है, लेकिन वो आनंद के साथ निरानंद मिला हुआ है। कभी तामसिक तत्व, कभी राजसिक, कभी सात्विक, ये मिश्रात नो गुण वर्जिते। संसार में जो आनंद है वो निर्मल आनंद नहीं है, वो मलिन आनंद है, वो दुखमय आनंद है। तो इस संसार में अगर भगवान को पाना चाहते हो तो निर्मल आनंद के साथ जुड़े रहने का कोशिश करो। समुन्न उन्नत उज्ज्वल रसम, इस बात को बार बार सुनो और बोलो, उन्नत उज्ज्वल रसम में हम लोग उसके अधिकारी हैं। उन्नत उज्ज्वल रस, उन्नत उज्ज्वल रस को हम पा सकते हैं। उन्नत उज्ज्वल रस के द्वारा जीवन को पूर्णता दे सकते हैं। ये जीवन संपूर्ण आनंदमय हो सकता है यदि हम लोग ऐसा करते हैं। इसलिए कभी कभी काल सर्प दोष हमारे लिए दुखों का कारण बनता है, कभी कभी बीज योग हमारे लिए दुखों का कारण बनता है, कभी कभी वास्तु दोष। वास्तु दोष सबसे भयंकर होता है। जिस गृह का मुंह के तरफ मतलब निकालते हैं जिस गेट से, उधर अगर ज्यादा चौड़ा है तो उस घर में कभी भी शांति नहीं रहेगी। नोट कर लीजिए, हिंदी में इसीलिए बोल रहा हूं कि सब लोग, लाखों लोग जो सुन रहे हैं वो सबको शेयर कीजिए, सबको आप व्हाट्सएप में भेज दीजिए, सबको शेयर कीजिए कि महाराज जी कहते हैं कि मैं उसका दास बन जाऊंगा। ऐसा अगर दिखा दें कि घर का सामने चौड़ा ज्यादा है, पीछे 40 फुट, सामने 50 फुट, ऐसे घर में रहने वाले कभी सुखी नहीं होते। जिनके घर का पानी दक्षिण दिशा से निकलता है उस घर का आदमी चरित्रवान नहीं होते, ये निश्चित बात है, उसमें शांति नहीं रहती। और जिस घर का नैऋत्य कोण से गेट है उस घर में भी शांति नहीं होगी। ये सारा दुखों का कारण है वास्तु दोष में। दूसरा वास्तु दोष ये होता है, जैसे ईशान कोण में बाथरूम बना दिया तो संतान के लिए बहुत हानिकारक बन जाता है। ईशान कोण में बाथरूम बन जाने से तपस्या साधना में मन नहीं लगेगा, ईश्वर के प्रति मन को ठीक से लगा नहीं पाओगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पैदा होता रहेगा। अगर नैऋत्य कोण में बाथरूम नहीं किया और नैऋत्य कोण में ठाकुर जी का घर बना दिया तो उस ठाकुर घर में जाने वाला कोई नहीं होगा, हर कोई जाने से वहां मन नहीं लगेगा। ये जो हम कह रहे हैं इसको जीवन में प्रैक्टिकल करके देखो। अब मेरी बात को प्रैक्टिकल करके देखो कि महाराज जी ऐसा जो कहते हैं ऐसा होता है। नहीं होता है तो मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा, क्योंकि मैंने जीवन में लाखों लोगों के जीवन में ऐसा प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि तुम जो जीवन में ये करते हो, वास्तु दोष आदि का जो निदान नहीं करते, इसके कारण तुम्हारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है। कालसर्प दोष, मंगल दोष, विष योग, उसके साथ साथ और कई प्रकार के दोष पैदा होते हैं। राहु मंगल एक साथ हो जाए और शनि मंगल एक साथ हो जाए तो ऑपरेशन का योग बना देता है, एक्सीडेंट का योग बना देता है और धूर्त बुद्धि, कपट बुद्धि को तैयार करता है। ये सब जीवन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसे जब तक आप नहीं समझेंगे आपका जीवन में कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए आगामी काल अर्थात अगले दिन, अर्थात कल जो
बुधवार है, आज मंगलवार है, बुधवार को भगवान पास फिरेंगे, अर्थात जैसे लेटे हुए थे भगवान, तो अपना पास, अपने पार्श्वी का एकादशी, अपने करबट बदलेंगे। तो करबट बदलने वाला एकादशी काल है। तो हर आदमी का उचित है कि प्रभु के इस एकादशी को परम श्रद्धा के साथ, परम भक्ति के साथ पालन करें और व्रत करते समय मंत्र का जप करते रहें। कोशिश होगी काल फिर इसी श्लोक के ऊपर विचार करें, क्यों हम जोगस्थ नहीं हो पाते, क्यों हम आनंद नहीं भोग पाते। इस जान लीजिए, हम लोग 30 अक्टूबर तक, 29 अक्टूबर तक है, 30 अक्टूबर को हम लोग यात्रा करेंगे चित्रकूट। सभी लोगों का टिकट हो गया, सबका रिजर्वेशन आदि कंप्लीट हो गया। आप लोगों को सूचित किया जाता है कि आप लोग अपने सारे पैसों, जिनका जितना पैसा जमा है, बाकी पैसा आप सितंबर के अंदर पूरे पैसा जमा कर दीजिए। सेप्टेम्बरेर मध्य पुरो टाका जमा करे दिन, निजेदेर टाका अवश्यई जमा करे देवेन। आश्रमे एसे जमा करले भालो, अ্যাকাউন্টে जमा करले आमादेर एकटू प्रॉब्लेम है, आपनारा सेटा बुझेन, आपनादेर पिछने खरच होबे, अथच अ্যাকাউন্টে शो होबे दुनियार लाख लाख टाका। सेई जोन्नो आपनारा एखाने एसे जमा करबेन। আর বাংলাদেশে যাব আমরা 15ই ফেব্রুয়ারি, তার জন্য প্রস্তুতি পর্ব চলছে। সমস্ত ভক্তবৃন্দকে জানাচ্ছি, যারা যেখানে আছেন সবাই মিলে आश्रमेर संगे जुड़े जान। भक्ति योगाश्रम ट्रस्ट आपके लिए जीवन का सारा रास्ता खुलेगा। महाराज जी के आदेश को पालन करिए और 17 सितंबर को कालसर्प दोष का जो निवारण करेंगे, जो उपाय करेंगे, यहाँ पर कवच धारण करके गंगा जी में ले जा करके सारे लोगों का दोष हम मिटा देंगे। तो इसलिए जो भी लोग कालसर्प दोष का उपाय करना चाहते हैं या जो भी मंगल के मार्ग में चलना चाहते हैं, वो सब केशवानंद वन महाराज से जुड़ जाइए और फोन करके बुकिंग कर लीजिए। उसमें लिखा हुआ है 9330975419। इस नंबर में कांटेक्ट करके बाग बाजार मोड़ पर हमारा ऑफिस है, एकदम बाग बाजार मोड़ पर। आप बाग बाजार मोड़ पर आ जाएं, आपको कोई परेशानी नहीं, एकदम मोड़ पर है। और कोई 9330975419 इस नंबर पर फोन करके पूरा डिटेल जान लीजिए। और भी एक नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है, वो ये वाला जो है ये व्हाट्सएप नहीं है। तो आप लोग सभी कल्याण के मार्ग पर चलें, गुरु के उपदेश पर चलें, मंगल के पथ पर चलें, आपका जीवन कल्याणमय हो। आज यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति ओम।